السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں کچھ کلام ہو جائے اس کے بعد سلام۔ اس لیے کہ آپ کو ماحول کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پہلی والی اب ہماری عادت رہی ہے کہ بلا وجہ توچر کرنا یہ چیزیں ہیں۔ اللہ اس کو ہدایت ہے یعنی وہ خود رب کی بارگاہ میں اس کو بنا لو۔ اسلام جو ہے یہ اخلاق نہیں بلکہ اخلاق ہے۔ یہ اسلام ایک اور دو دن تین دن میں نہیں بلکہ صدیوں زمانہ اسلام کو پھیلانے لگا۔ اسلام وہ چیز ہے کہ جو اسلام کا مزہ چکھ لیتا ہے نا پوری زندگی اس کے دل میں عشق رسول پیدا ہونے لگتا ہے۔ لیکن جو اسلام کے روشنی سے ناشنا ہے اللہ انہیں توفیق دے دے۔ تو آپ اگر کے امام صاحب قبلہ کا کرم نوازی ہے کہ وہ یہاں کے مالک ہیں، وہ جو چاہیں کر دے، ان کا حکم سراغوں پر ہے میرے میں۔ تو زیادہ میں وقت نہیں لوں گا، بس میں یہاں سے شروع ہو رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، النکاح نصف الایمان، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اگر بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم زیادہ توجہ نہیں کریں گے، اگر سمجھ میں بات آ جائے تو سبحان اللہ کہیے گا تو فائدہ آپ کو ہوگا، بیٹھ کے سنیے گا تو نقصان آپ کو ہوگا، اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے نہج میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں جب میرے آقا انگلی کا اشارہ فرماتے ڈوبا ہوا سورج پلتا تھا، حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، حضرت علی کے جان پر حضور سب رکعت میں سو رہے تھے، اگر چاہتے تو کوئی دقت نہیں تھی کیونکہ مختار کائنات علی کے گود میں سو رہے ہیں، خیال پیدا نہیں ہوتا نماز کی، لیکن نماز کی محبت تھی، نماز کی محبت نے حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو گر کر کے حضور کے چہرے پہ گرا، حضور بیدار ہو گئے، جب بیدار ہوئے مصطفیٰ فرمایا علی تجھے کی چیز نے رلا دیا ہے، آخر بات کیا ہے، معاملات کیا ہے کہ تیرے آنکھوں میں آنسو ہے؟ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہونے والی ہے، یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں علی کیا تم نماز عصر پڑھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو نماز عصر میں پڑھ لیتا، تو حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج پر ڈالا، اور وہیں پہ آ کر تھا جہاں پہ اصل کا وقت شروع ہو۔ سبحان اللہ۔ تو سورج الٹے پاؤ پلتے، چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے پاؤ پلتے، جب آمنہ کے لال نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو سورج الٹا پلٹا،
के आया कि कहीं ऐसा न हो कि हुजूर के सामने बैठी हो। सुभान अल्लाह। तभी तो शायर कहते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चांद अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हुजूर हमारी आदत शान बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी उनकी शान है, बहुत बड़ी उनकी शान है। जमाने के तमाम लोग अगर बैठ करके हुजूर की तौसीफ बयान कर सके सुबह कयामत तक करता रहेगा, फिर भी हुजूर का एक नुक्ता, हुजूर की नींद का नुक्ता पूरी जिंदगी बैठ करके तो भी नहीं पहुंच सकते, नहीं कर सकते। हुजूर हैं तभी तो हुजूर तारीफ सजा फरमाते हैं कि जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हवा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहिए अता कर दे। सुभान अल्लाह। बेशक एक मरतबा हुजूर की बारगाह में चंद मेहमान आए। एक मेहमान हुजूर की बारगाह में रात की तारीखी में हुजूर अपने सहाबा के अंदर बैठे हैं। एक मेहमान आके रात में हुजूर ने फरमाया, ए सहाबा ये हमारे मेहमान हैं, ए सहाबा ये हमारे मेहमान हैं, जो इसे खाना खिलाएगा अल्लाह बरोज़ क़यामत उसे जन्नत से खाना खिलाएगा। सुभान सहाबे रसूल उस ज़माने में दीन के मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे, दीन के मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। उसमें से एक सहाबे रसूल खड़े हो गए, नाम हजरत तलहा है। क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? हजरत तलहा। हजरत तलहा, ये सहाबी रसूल है हजरत तलहा। खड़े हो गए, हजरत या रसूल अल्लाह, ये आपके जो मेहमान है ना उसे मैं अपने घर ले जाता हूँ। जब हजरत तलहा इस मेहमान को अपने घर लेके गए, बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, ये हुजूर के मेहमान हैं और हुजूर ने मुझे सुपुर्द कर दिया है कि आपके घर में कुछ खाने को है। हजरत तलहा की बीवी कहती है, मेरे सरताज हम भी हैं, आप भी हैं, छोटे बच्चे हैं, तीनों भूखे हैं, बस इतना खाना है एक आदमी खा सकते हैं। इतना खाना है एक आदमी खा सकते हैं। इसलिए मेरे सरकार हो सकता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, उसको थपकिया दे करके हम छुड़ा देंगे, बस हम और आप रह जाएंगे। लेकिन मेरे सरकार अगर मेहमान आपको जिद करेंगे खाना खाने के लिए तो आप ऐसा कीजिएगा, जो चराग है उसको बंद कर दीजिएगा, बुझा दीजिएगा और खाने की तरह आप भी मुँह चलाइएगा और मेहमान के सामने सारा खाना रख दीजिएगा ताकि वो चिकन शेर होकर के खाना खा ले। कि हुजूर के ज़माने के लोग यार, कि हुजूर के ज़माने के लोग थे जो खुद नहीं खाते थे, हुजूर के मेहमान को खाना खिलाया करते थे। आज हम और आप अपने घर के मामलात को देखें, हमारे घर के पड़ोसी भूखे रह जाते हैं और हम अपने दाने को नालियों में बहा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। और ये कुर्बानियाँ देने के बाद अल्लाह का मकबूल बंदा बनता है। हर कोई मकबूल बंदा नहीं, महबूब बंदा नहीं बनता है। अल्लाह जिसे चाहता है वही महबूब बंदा बनता है। सुभान अल्लाह। बेशक अभी कुर्बानी गुजरी है ना, जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होगी, अब देखिएगा महीना दिन फ्रिज के गोश्त बचे से खाएगा, जबकि हुजूर ने सबसे से मना फरमाया है कि 3 रोज से ज्यादा कुर्बानी में गोश्त न रखा जाए। लेकिन आज हम और आप कुर्बानी तो करते हैं, कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन 2-2 पीस हड्डी थोड़ा सा कुछ मिला करके गरीब के घर भेज देते हैं। गरीब कभी अपने बच्चों को चेहरे को देखती है, कभी अपने तरफ देखती है और ख्याल करके काश मौला तू मुझे उस काबिल बना दिया होता ताकि मैं भी कुर्बानी करता। आज कुर्बानी के दिन है, सारे अमीर के बच्चे कुछ खा रहे हैं, हमारे गरीब के बच्चे मुंह देख रहे हैं और हम क्या करते हैं कि जो हमसे ज्यादा रईस है, जो हमारे काबिल है, हम उन्हें अपने घर पर बुला करके खाना खिलाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चों को नहीं पूछते हैं। याद रखे, बरोसे क़यामत हर एक सांस का अल्लाह आपसे हिसाब लेगा। अगर कुर्बानी में हमारे बच्चे कुछ खा लिए, अगर गरीब के बच्चे नहीं खाए तो ये बच्चा बरोसे क़यामत जवाब बन जाएगा कि मौला इसकी कुर्बानी तो की थी, लेकिन महज अपने खाने के लिए कुर्बानी की। तो हजरत तलहा गए बीवी के पास, कहा कि इतना खाना है कि बस एक आदमी खा सकते हैं। तो कहा कि ऐसा कीजिए, जब मेहमान के सामने खाना रखा जाए ना तो मेहमान को खाने दीजिएगा और आप खाने को मुँह चलाते रहिएगा ताकि मेहमान को ये लगे कि वो भी साथ में खा रहे हैं।
जब मेहमान शर्मशेर होकर के खाना खा लिए ना, खाना खा लिए और मेहमान को बिस्तर लगा दिया गया, सो गए। रात में भूखी बीवी भी सो गई, शोहर भी सो गया। अल्लाह अकबर। वो कैसे लोग थे जिसने अपने हक का खाना भी कुर्बान रब की बारगाह में कर दिया। वो कैसे अल्लाह वाले थे। हुजूर के ज़माने की औरतें भी औरतें थी कि जो खुद नहीं खाती थी, हुजूर को मेहमान को खाना खिला दिया करती थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह हुई, हुजूर ने ऐलान फरमाया कि तलहा कहाँ है। कि हुजूर ने फरमाया तलहा। जैसे हुजूर ने तलहा को देखा ना, हुजूर मुस्कुराने लगे। जैसे हुजूर ने तलहा को देखा, हुजूर मुस्कुराने लगे। और जब तलहा करीब में आ गए तो हुजूर ने फरमाया तलहा, आज रात मैंने देखा कि रब तबारक व तआला जन्नत में फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा चर्चा कर रहा था। सुभान अल्लाह। तुम्हारा चर्चा कर रहा था। हज़रत तलहा बारगाह मुस्तफा में अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, वजह क्या थी, मामलात क्या था। तो हज़रत मेरे आका फरमाते हैं तलहा, बात कुछ नहीं है, बात ये है कि तूने अपने हिस्से के दाना जो रब की बारगाह में कुर्बानी की है, अल्लाह इसका सिला तुम्हें दुनिया में भी देगा और बरोज़े क़यामत भी देगा। सुभान अल्लाह। बरोज़े क़यामत भी देगा। इसलिए हम लोग हुजूर के गुलाम है, सच्ची मोहब्बत हुजूर से करें। अब तो फैशन का ज़माना आ गया है, तो एक पिता का बच्चा नाच करता हुआ नजर आता है, उसके अंदर हुजूर की मोहब्बत कहाँ से पैदा होगी। हमने अपने बच्चों के अंदर ज़माने वाले का स्टाइलिश बताया है। आज हमारे बच्चे ज़माने के जितने काफिर है सब स्टाइल मारते हैं। कभी यहाँ पे कपड़ा फटा है, कभी यहाँ पे बाल फटा है, कभी यहाँ पे ये फटा है। याद रखें कि जो जिसके तरीके को अपनाएगा, जो जिसके तरीके को अपनाएगा, जो जिसके रास्ते इख्तियार करेगा, बरोज़े क़यामत उसका हश्र उसी के साथ होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज हम किसी नेक आलिम के तरीके को इख्तियार नहीं करते हैं। कोई ग्राफिक नाच करने लगा ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी टिकटॉक पे छाए हुए हैं, गाना गाता करते। ये क्या है, इनके माँ बाप कहाँ चले गए, दुनिया से चले गए क्या, इनको समझा नहीं सकते। ये सब बेहुरमती बेगैरत है। ये आने वाली नस्लें नापाक हो जाएंगी, याद रखना। आने वाली नस्लें नापाक हो जाएंगी अगर हमारे बच्चे के रवैयात इसी तरह रहे तो कल हमारे घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। याद रखिए आप इस चीज को। इसलिए अपने बच्चों को तलकीन करे। नाच गाने का रिवाज इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि बुराई खुलम खुला हो रहा है, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, किसी का ख्याल नहीं होता। 10 लोग बैठे उस पर चर्चा करे कि हमारे समाज में फुतूर गाना नहीं चलेगा, हमारे समाज में ये जो नाच करता है लड़का वो नाच नहीं चलेगा। अगर नाच करेगा तो समाज से काट दो। तुम यहाँ दुनिया में सख्ती ही इख्तियार करोगे तो बुरा लगेगा, बरोज़े क़यामत रब की बारगाह में सुरखरू हो जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हो जाओगे आप। लेकिन अगर आपने उसे काबू में ना किया ना तो याद रखिए समाज बरोज़े क़यामत रब की बारगाह में ठुकरा होंगे, सबको पकड़ा जाएगा कि तू समाज का मैन लोग थे, तू समाज के होने वाले लोग थे। अगर तू चाहता तो बंद हो जाता, लेकिन तूने किया नहीं। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा माहौल को हल्का सा, ज्यादा नहीं बोलते, थोड़ा खींच करके लाइए थोड़ा, ताकि हो सकता है कि रफ्ता इनकलाब बर्पा हो जाए। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला